जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय। गोपी जन गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन रावण जारी रावण जारी। जय राम हरि जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Baba, Nitai Gaura Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nasti Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhakti Nistiki Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatrupatamaham Vande Shri Guru Dinatarina Paramananda Madhavam. Power of the seat is such that you can forget the sloka which you every day reciting. But anyhow, I seek the blessings of all the devotees, our beloved Guru Maharaj, all the Siksha Gurus, and I feel privileged and happy, honored to have this service of reciting Bhagavatam, though I am not qualified to touch the Bhagavatam, but by causeless mercy of Srila Prabhupada, by causeless mercy of beloved Guru Maharaj,
he is empowered to speak something, though it is known to everybody. सबको सभी भागवतम के सिद्धांतों के बारे में पता है. But जैसे right now I forgot, no, every day we should satatam, every day we should recite Bhagavatam, release Bhagavatam. Any part of Bhagavatam you pick up and you start reading and start meditating, it becomes relishing. And probably all the preachers who have come on this on this Vyasasan and started sharing their experience, they would have realized. Because to prepare that, one is to meditate for, at least 2 weeks. And the beauty of Bhagavatam is it gives you the understanding or realization is with respect to your meditation, how much you meditate on Bhagavatam. And that much fruit, ye yathamam prapatyante, Bhagavad Gita says, similarly, Bhagavatam also. If you meditate this much, inference will be this much. If you meditate this much, inference will be this much. If you meditate this much, inference will be that much. So it depends on how much depth we map in the Bhagavatam. We'll read this sloka. Bhagavatam is the only life savior for us in Kali Yuga. First canto, last time also, Vinindra Prabhu recited the sloka. It has come to save us in a vag form, in a word form, in a form which we can read and realize the Lord. Lord is there personally sitting just behind me. I mean, I'm taking offense showing my back just for the sake of having darshan. सभी भक्तों को दर्शन हो, इसलिए मैं इसी स्थिति में बैठा हूँ. But I know that Krishna is watching it. What a fool rascal is going to glory, attempting to reciting Bhagavatam. But I seek blessings of Balramji that he empowers to speak something worthy in line with Prabhupada's teaching, in line with Gauranga Mahaprabhu's teaching. We go ahead with the sloka. This is from Srimad Bhagavatam 8.6.20. Aryopi Sandeya Sati Karyartha Gaurave Ahi Mushikavat Deva Iyartasya Padavim Gate. Take one more time. Aryopi Sandeya Sati Karyartha Gaurave Ahi Mushikavad Deva Iyatasya Padavim Gati. Translation. O demigods, fulfilling one's own interests is so important that one may even have to make a truce with one's enemies. For the sake of one's self-interest, one has to act according to logic of snake and mouse. देवता गण को भगवान बता रहे हैं कि अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उनके महत्व के लिए हमें अपने दुश्मनों से भी संधि करना है. और अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सांप और चूहा, उनका जो लॉजिक है उस हिसाब से हमें कार्य करना है. By his divine grace, a snake and a mouse were once caught in a basket. Now, since the mouse is food for the snake, this was a good opportunity for the snake. एक बार सांप और चूहा एक बास्केट के अंदर फंस गए और चूहा जो सांप का खुराक है, तो सर्प के लिए वो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वो चूहे को खा ले. However, since both of them were caught in the basket, even if the snake ate the mouse, the snake would not be able to get out. पर यहाँ पे सर्प जो चूहे को फंसे हुए हैं उसको खा लेगा, तो सर्प वो बास्केट से बाहर नहीं निकल पाएगा. Therefore, the snake thought it wise to make a truce with the mouse and ask the mouse to make the hole in the basket so that both of them
could get out. इसलिए सर्प ने सोचा कि मैं चूहे के साथ संधि कर लेता हूं, ताकि चूहा वो बास्केट को काटेगा, उसमें होल बनेगा और सर्प बाहर निकल जाएगा. The snake's intention was that after the mouse made the hole, snake का क्या उद्देश्य था कि वो जब भी होल बनाए तो snake would eat the mouse and escape from the basket through the hole. तो सर्प है वो चूहे को खाए, खा के वो होल से बास्केट से बाहर निकल जाए. This is called the logic of snake and mouse. तो यही है लॉजिक सर्प और चूहे के बीच में. तो भगवान यहाँ पे बता रहा है कि fulfilling one's own interest is so important that one may even have to make a truce with one's enemy for the sake of one's self interest. यहाँ पे दूसरी बार 2 बार सेल्फ इंटरेस्ट शब्द यहाँ पे उपयोग हुआ है इस श्लोक के अंदर. One has to act according to logic of snake and mouse. तो स्नेक एंड माउस जो फिलोसॉफी यहाँ पे दी गई है उस तरीके से हमें भगवान, कैन यू इमेजिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज टेलिंग टू डेमीगॉड्स कि इस टाइप का आप डिप्लोमेसी या कूटनीति को अपनाओ. भगवान बता रहे हैं देवताओं को, जब देवता भागते भागते गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए भगवान के पास और भगवान ने बताया कि मैं, आप एक काम करो, अभी दानव लोग जो है, दैत्य लोग, दानव, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, यू कांट विन ओवर देम. तो आप एक उनके साथ संधि कर लो, यू अरेंज, यू मेक अ ट्रूस विद देम. यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम पर्सन इज ऑल कैपेबल, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम हिम, एवरीथिंग वर्क्स विद बाय हिज डिजायर, nothing is unknown to him, and nobody claimed that he has personal contribution to make this, because everything is known to him, everything is made by him, everything is being controlled by him, and by his desire he can annihilate also. So there is nothing which is not possible by Krishna, by Vishnu. But then also भगवान को बोलना चाहिए ना कि भाई आप जाओ, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, एंड यू जस्ट फाइट, आई विल बेक यू अप, ऐसा बोल सकते हैं ना. तो भगवान यहाँ पे क्या कूटनीति अपनाने को बोल रहे हैं कि आप जाके संधि कर लो दैत्यों के साथ, और आई विल सपोर्ट यू, आई विल सेव यू. तो यहाँ पे आई मीन इट क्वेश्चन अस कि भगवान ने ये क्यों करा, क्योंकि सामने बलि महाराज हैं. आज तो ओणम है ना, तो बलि महाराज का ग्लोरिफिकेशन भी होना चाहिए, पर एनीहाउ वी डोंट हैव टाइम. पर सामने बलि महाराज है, अप फ्रंट कैसे बोलेंगे कि बलि महाराज बलि हैं, उनकी सेना को मैं हरा दूंगा. कृष्णा कैन नॉट टेल दिस, विष्णु कैन नॉट टेल दिस, बिकॉज बलि इज ऑल्सो डिवोटी. तो भगवान का ऐसा धर्म संकट हो जाता है कि इस साइड भी डिवोटी, इस साइड भी डिवोटी. पर इसको तर्क से भगवान उनको बताते हैं कि ये स्नेक और माउस की जो फिलोसॉफी है, जो मेथड है, उससे अपने आप को रक्षा करो. आप जाके यू जस्ट बी फ्रेंड विद देम एंड टेल दैट लेट अस पुट आवर जॉइंट एफर्ट्स एंड व्हाटएवर कम्स आउट वी विल शेयर दैट इक्वली. बट बोथ हैव सेम मोटिव. दैत्यों को भी और देवताओं को सेम मोटिव है कि ये चर्निंग करेंगे और इसमें से जो भी निकलेगा आई विल टेक, वी विल टेक एंड विल गो. पर एक डिफरेंस है कि देवताओं ने भगवान के कहने पे वो फॉलो कर रहे हैं, और जो दानव हैं, why they are doing, because they want to satisfy their own desire, they want to fulfill their own desire. So they are driven by their own senses, their own desire, their own dreams, their own fulfillment, whereas devatas are being guided by the instruction of Supreme Lord. So that is difference, and that makes them win this game. अच्छा, डिप्लोमेसी यहाँ पे आया. जनरली डिप्लोमेसी वर्ड व्हेन वी, कूटनीति शब्द जब भी किसी को बोलते हैं ना, तो इट विल गिव अ बैड फील, है ना. परहैप्स कूटनीति शब्द हिंदी में बहुत मलिन हो चुका है रादर देन डिप्लोमेसी इन इंग्लिश वर्ड,
कूटनीति बोलो तो हमें लगता है कि ये तो कुछ ना कुछ गलत करेगा ही। डिप्लोमेसी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है परहैप्स, आई डोंट नो, पर कूटनीति भगवत गीता की शुरुआत में ही दुर्योधन ने जाके नहीं, पहले ही पार्ट में बताना चालू किया अपनी कूटनीति से। भीष्म पितामह के पास है, सबको बोल रहा है कि आप भीष्म पितामह के बाजू में खड़े रहिए, वो अभी वयोवृद्ध हैं और उनके सेनानी कैसे हैं और हमारे सामने हमारे साथ कौन है, और इस प्रकार से वो कूटनीति का उपयोग करते हैं। तो कूटनीति जब भी भगवान ने भी ऐसे डिप्लोमेसी बताई, कूटनीति बता रहे हैं, तो उसका मतलब कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्योर डिप्लोमेसी समवेयर, बिकॉज कृष्णा इज एग्जिबिटिंग, दैट मीन्स इट इज इन प्योर फॉर्म। कृष्ण भगवान से जो भी चीज है वो सब प्योर फॉर्म में है। इट इज अनटच्ड बाय मटेरियल कॉन्टामिनेशन, इट इज अनटच्ड बाय मटेरियल डिजायर। तो भगवान ने ये डिप्लोमेसी बताया, तो देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी somewhere which is pleasing to Lord, and there is a diplomacy in material world or anywhere in material world which is satisfying some material desires. हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कोई कूटनीति रहेगी, और हमारी आध्यात्मिक भगवान को कोई रस प्रदान करने के लिए भी कोई कूटनीति है। तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन आता है कि ये कूटनीति क्यों आती है, व्हाई दिस डिप्लोमेसी कम्स इन अवर बिहेवियर, अवर एक्सचेंज, अपने विचारों में कैसे कूटनीति आती है। तो एक बड़ा कारण है तो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस है कि ही इज डूअर, कृष्णा इज डूअर, वी डोंट नो दैट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग्स बाय आवर ओन कैपेबिलिटीज, बाय आवर ओन कंट्रोल। तो इसलिए इग्नोरेंस है, वेरी एविडेंट इग्नोरेंस है। दूसरा, टेंडेंसी टू एक्वायर, कि मुझे प्राप्त कर लेना है। अच्छा, भगवान ने ये सृष्टि का सर्जन किया तो ऐसे नहीं छोड़ दी सृष्टि। भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर एक यज्ञ चक्र बताया है, बराबर है। एवं प्रवर्तिता चक्रम नानु नानु वर्तते यह अधोय इंद्रियारामो, और लास्ट में बताते हैं कि पार्था मोघ पार्था जीवती यह, कि ये जो यज्ञ चक्र का निर्माण किया है उससे जो जीव सृष्टि है और देवताओं के बीच में एक सहयोग आता है, एक सहयोग की भावना पैदा होती है। एक they are living for each other like that, and so you should do this yajna for my pleasure. So the system is set. If you live like this, then the whatever ingredients, whatever is required for your livelihood will be provided by this material world, because this is chakra। आप डेमीगॉड्स को प्रसन्न करोगे जो विष्णु की आराधना रूपी यज्ञ करके, और इससे देवता खुश होंगे, बारिश होगी, अन्न होगा, खुराक आपके लिए होगा, आपका भरण पोषण होगा, उससे यज्ञ चलेगा, यज्ञ करते करते देवता खुश होंगे, फिर से बारिश होगा। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा। भौतिक संसार इसी प्रकार किसी भी इंटरवेंशन से ऑटोमेटेड, ये ऑटोमेटेड मोड पे रख दिया है भगवान ने। देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड। पर प्रॉब्लम क्या है कि our desires comes which disturb the cycle. We don't know our sukha, what is our real happiness, and we start starving, we start putting efforts to get happiness somewhere else, which is purely because of our ignorance. And that sukha has also one equation set in in material world. भागवतम से sukhaya, everybody tries to remove this sukha, but this sukha comes with dukha, or when this dukha will come, सदा आपनोति यह सुखा तदेव आपनोति सुखावृता। मतलब is at a moment when we start aspiring for happiness, material happiness, immediately dukha is generated. Sukhaya dukha mokshaya
संकल्प ये कर्मणि, सुखाय दुख मोक्ष, एवरीबडी वांट्स सुखा एंड मोक्षाय किससे, दुख से। संकल्प ये कर्मणि, एवरीबडी डूइंग दिस संकल्प, I want to be get rid of dukha and I want to get sukha. But when dukha will start, when you at the moment we start aspiring for sukha, ये प्लान बनाते हैं कि इसके बाद मुझे सुख प्राप्त होगा, तुरंत ही दुखा स्टार्ट हो गया है by default, and that is the set equation in material world. It is there in Bhagavad. But we are not satisfied and we putting extra efforts. We are seeing outside and we see sukha here, sukha here, sukha here, sukha here, but not sukha with me. माता जी थे ना, उसने बहुत अच्छा बताया था तुलसी के, निर्धन कहे धनी सुखी, धनी कहे सुख, धनी कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी। बाद में तुलसी दास जी क्या बोल रहे हैं कि तुलसीदास कहे भजन बिना सब दुखारी। अब भजन नहीं करोगे तो सभी दुखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुख है, इधर है, सुख है, सुख है, सुख है, पर वी मिस a thread which brings us sukha, real happiness, real peace, real stability. Otherwise, we all the time hovering around anxiety. Oh, chakki chakki, oh, the Kabir Doha is also very nice. Chakki chakki, देखे दिया कबीरा रोए। तो चक्की होती है ना, अभी बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि वो ग्राइंडर कैसा होता है। दो पाटन के बीच में साबुत ना करी हुई, ये दो पाटन के बीच में साबुत ना करी हुई, देश में दो पट्टियां ऐसे ग्राइंड होती हैं, तो उसमें कोई एक दाना बचता नहीं है, उससे सब आटा बन जाता है। और क्या बोल रहे हैं, चक्की चक्की सबको किल्ली ना करे कोई। चक्की के बीच में किल्ली होती है, किल्ली के बाजू में जो दाना फंस गया तो वो दबता नहीं है, उसमें वो ग्राइंड नहीं होगा। तो फिर चक्की चक्की सब करे, किल्ली ना करे कोई, और जो किल्ली के साथ रहे बाल बाका ना। तो किल्ली क्या है? द थ्रेड विच कनेक्ट अस टू सुप्रीम लॉर्ड, द थ्रेड विच गिव्स अस द स्पिरिचुअलिटी, थ्रेड गिव्स अस द रियल आइडेंटिफिकेशन, thread which tells us that this is the doable and this is the only doable. So this is not known to us, this is not understood by us, and that is why we are unsatisfied, we are all expecting something from people. अच्छा, एक बहुत I'll not go much in detail because very fast भाग रही है। See, हम स्वार्थ कर रहे हैं ना, कि सब दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है, तो not because they have become selfish, and that is not the only reason why people are swarthy, why they are selfish, because they don't have shelter, they don't have protection, they have limitation. How much I can help to my daughter who is in India now? As much wealth I have, that much I can help. As much reach I have, that much I can. Beyond that, I can't help. If she has some health issues, which is not curable, God forbid, can I help her? So we all have limited access, power to control, to help somebody. Only Krishna has limitless power who can save us. So we should not expect from somebody who is helpless. If we expect somebody from helpless, then we'll tell, he's selfish, he's selfish. No, he's not selfish. He doesn't have limit capacity to support you. So let us not blame others. Let us try to take the shelter of Supreme through the duplicity or dvand या cheating propensity या instability आती है, that we can remove easily. है ना, if we take right shelter. अच्छा, यहाँ पे द्वंद्व की बात आती है या ये जो डिप्लोमेसी की बात आती है, वो सब जगह पे है। जैसे अभी बताया ना, कौरवों ने भी बहुत सारे चीटिंग किया और पांडवों ने भी किया। कौरवों का क्या था करना कि जो धर्म मुझे मेरी उपलब्धियों को या मेरी डिजायर को फुलफिल करे, वो मेरे लिए धर्म है।
धर्म तोड़ के भी मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो मैं होल हार्टेडली आई विल ब्रेक द रूल्स, होल हार्टेडली आई विल break the dharma. But demigods, what they think, that no, our perspective, our aim is what? To please Krishna, to follow his instruction. So that is our dharma. Any activities matching this purpose, perspective, हेतु, तो वो मेरे लिए धर्म है. एनी एक्टिविटीज जो मुझे भगवान की आज्ञाओं का पालन करने नहीं देती हैं, वो मेरे लिए अधर्म है. तो ये डिफरेंस था. तो मोटिव एंड मीन्स, उनके मोटिव सही थे, उनकी साध्य, उनके जो ध्येय थे देवताओं के, वो सही थे. मीन्स के ऊपर जो साधन है, उनको उन्होंने ज्यादा प्राधान्य नहीं दिया. They didn't give much importance to mean, but they gave much importance to what is required to be done, what is the purpose of our life. So that's why Kaurava and Pandava, पांडवों ने भी देखो, कृष्ण भगवान खुद, वो दुर्योधन जा रहा था अपनी माँ के पास वज्र का शरीर करने के लिए, तो कृष्ण भगवान पूछे, भाई तू कैसे ऐसे नग्न अवस्था में जा रहा है? बोले मेरी माँ ने बुलाया. नहीं 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 नहीं, माँ के सामने ऐसे कैसे जा सकता? तो उनको यहाँ पे कपड़े, वो कूटनीति नहीं थी तो क्या थी? द्रौपदी को लेके जाके भीष्म पितामह के पास जाके वो कूटनीति नहीं थी. तो मोर देन डिवोटी, Krishna is planning for the devotee how to make truce with the situation so that my devotee will be winning the game. I mean, if you see, it is a clear indication that Krishna is more alert than Pandavas. I mean, he is definitely God. He doesn't need to take control or put extra efforts to control the situation, but still, he was more alert to form a situation so that Pandavas come as a winner. रात को पांडव सो जाते रहेंगे, पर कृष्ण सोचते रहेंगे कल क्या प्लान करना है इनका, कल कैसे इनको जिताना है. पर ये क्यों कर रहे हैं भगवान? बिकॉज ही इज डिराइविंग सम रसा, है ना, रस राज है. सो वी कैन नॉट से दैट नो, कृष्णा ने अपनी इच्छा पर वो उनकी हर एक इच्छा, हर एक एक्टिविटी इज फीडिंग हिम सम रसा. So Krishna wants to enjoy that rasa. So Krishna has made Pandavas as an instrument in his hand and deriving that rasa. Our desire should be that something from me should be relishable to Krishna. For his pleasure, I am doing chanting. If that comes, then definitely Krishna at some point of time, being Paramatma, think that he is putting so much efforts. One lecturer was nicely telling that one devotee was nicely concentrated yogic posture. He was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. And one devotee, he was standing and chanting, and then also falling asleep. वो चलते चलते भी सो रहा था, और कहीं पे रुके फिर से सो, और फिर से again he started saying Hare Krishna, Krishna. He was struggling so much. So a teacher nicely told that Krishna must be recognizing the stress what he is facing. So इनके लिए तो बहुत सही है, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में है, उनको बहुत काम नहीं है. पर ये ब्रह्मचारी बेचारा रात को 11 बजे कहीं से घूम घाम के आया है, अभी सुबह नहीं चेंटिंग करेगा तो दोपहर फिर से लग जाएगा, इसलिए बेचारा सोते सोते चेंटिंग कर रहा है, खड़ा है फिर भी सो रहा है. So that is more relatable to Krishna, because he is struggling, his devotee is struggling. His desire, the pure desire is there to bring Krishna in his heart, invite Krishna in his tongue, but his physical inability is वो उनको नहीं करने देती है मदद की करे कैसे ठीक से. तो कहने का मतलब है कि कृष्णा ऑल्सो है इन मेनी लीलास एक्सप्रेस डिप्लोमेसी. अच्छा, भगवान है ना प्लान करते हैं. This is not from my logic. I mean, if we see sequence of leelas and from Krishna's perspective, if you start thinking, then Bhagwan achintya hai. We should not endeavor to try to read his mind. But if you see and logically connect all the dots, you feel that
Krishna gives instruction. If you happily take, and if Krishna is favoring, then he will be happy. Okay, Krishna, this Jiva is good. He's taking my instruction and he is pure, so let him come and take care of him. Another devotee, his devotee, whom Krishna loves, but he will not so easily accept the instruction. अपने बच्चे होते हैं ना, कोई बच्चे अपने ही हैं, we can't leave them. If he is not following instruction or following instruction, we can't leave them. पर बच्चे को बोले तो वो बहाना बताएगा कुछ ना कुछ. So Krishna makes a plan for him, something, so that at the end he comes to him. Because ultimate purpose of doing all this is to come a point where we accept Krishna so easily. And Krishna can take us so easily. That is the ultimate plan of Krishna for making this situation. And by doing this plan, even if Jiva is not accepting the situation, then all punishment and all everything will start. Then Krishna will tell, okay, you just come after some time. Once you realize that your activity, your involvement in other activity is not pleasurable for you, and your being with me is only giving pleasure giving, so you come after some time. So that way Krishna has all plans to bring all the jivas, because he is a person, he is a supreme father. He has much bigger and compassionate heart, unconditioned, pure heart, which emanates only love. So more than our feeling, he feels. So भगवान कूटनीति से ये सब अरेंज करते हैं. एक श्लोक है, यस्याहम अनुग्रहामि, जिनको मैं अनुग्रह करता हूँ भगवान. ये आई थिंक दिस मस्ट बी एपिटोम ऑफ कूटनीति डिप्लोमेसी. यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शने. जिनको मैं प्रेम करता हूँ ना, उनका मैं धन हर लेता हूँ. ततो अधनम, उसके बाद वो अधनम, वो जो पुअर बिगर हो गया है, तज्जंती यश, बोले उनको छोड़ देते हैं. कौन? स्वजन, उनके स्वजन भी छोड़ देते हैं. एंड दुखाम दुखिता, वो दुखी हो जाता है. एक जन को बोला कि ये श्लोक है ना, याद करो, ट्राई टू रिमेम्बर दिस श्लोक, मेमोराइज दिस श्लोक. बोले ये मेमोराइज करने का भी बहुत डिफिकल्ट है. Because if I memorize and if I start meditating on this, it's difficult to memorize also. So this is the last point of Kutniti. And why Krishna does this? It is not for punishment. It is not for troubling his devotee. He wants to give some nectar. He wants to, I mean, जो कोई आदमी कोई डूब रहा है, तो आप कैसे बचाओगे? पानी में डूब रहा है, उनको हाथ देके नहीं पकड़ो, उनका बाल पकड़ के खींचना पड़ेगा, है ना. हाथ दोगे तो आपको भी खींच के डालेगा अंदर. So you have to just hold his hair and take him out. Similarly, when Krishna wants to anugrahami, प्रेम देना चाहते हैं, तो leave it everything, you leave it. Let your relatives also leave you. Let your dhana also leave you. Wealth, everything. You please come as you are, as my servant. I want to love you. Kitna, I mean, it is really heart touching, no? I mean, in material way, we think that if we have some good feel for others, if we are caring of others, then we want to give something. And here Krishna said, but devotees are more alert, not alert, receptive. Okay, Krishna, you want my dhana? You say, okay, that is always I understood that it is going to be over. And this is bodily, it is related to my body, which is temporary. And Narottam Das Thakur, he counteracted. Krishna is telling, Yasya Anugrahami, Harishyata Dhanam. Narottam Das Thakur क्या बताते हैं? यदि दयानाचारिवे पतिता किया
पतित पावन नाम किसेर लागिया। आपने पतित को देख के, मुझे पतित को देख के आपने उद्धार नहीं किया, तो पतित नाम किसेर लागिया, पतित नाम क्यों लगा? आपने भगवत गीता में बोल दिया कि अर्जुन प्लीज अनाउंस माय डिवोटी विल नेवर वेनिश, बिकॉज आई मे ब्रेक माय वर्ड्स, but you can break your words, but you can't change your name. Anybody can change their name? Your name is Patit Pavan, you can't change your name. You can tell Arjuna, okay, you are Chalam Chalyatam Asmi, you are cheater, best cheater, but you cannot change your name Patit Pavana, so you should liberate me from this material. भगवान 18वें अध्याय के अंदर बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म की स्थापना उसने की। भगवान बोल रहे कि धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। 70वें अध्याय के अंदर पूरे धर्म बता दिए, कुल धर्म, राजा, सब धर्म की। 18वें अध्याय में बोले धर्म को तोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो आगे जो सब बताया वो किसके लिए है? जो मैंने बताया ना कि जो सीढ़ी से चढ़ना चाहते हैं वो सीढ़ी से चढ़े सीधा भगवान के पास। अच्छा, दूसरे अध्याय में ये जो फीलिंग है 18वें अध्याय में सर्वधर्मन परित्यज्य, ये ऑल ऑफ सडन इट वाज नॉट कृष्णा इज टेलिंग एट द एंड, कृष्णा इज टेलिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, सेम इंटेंसिटी बट इन डिफरेंट वर्ड्स। थर्ड चैप्टर के अंदर बताते हैं ना कि यू गिव ऑल एक्टिविटीज टू मी with sannyasa adhyatma chetasa, which is that sloka, mani sarvani karmani sannyasa adhyatma chetasa, you give me all your activities. Is it not same like sarva dharman parityajya? Right in front, right in the third chapter, Krishna is telling this. So his emotions are there in while from his first instruction, starting from second chapter, it comes out। 18वें चैप्टर के अंदर बताया कि धर्म को, सब धर्म को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। तो ये था सब डिप्लोमेसी और भगवान का अनुग्रह और क्यों हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द है, आई विल गो लिटिल फास्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। 2 बार शब्द आया, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, निजी स्वार्थ क्या है? First we should understand who I am, who is self। तो हम अपने आप को मन बुद्धि अहंकार के रूप में भी जान सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं कि मैं आई एम माइंड। सो मन को जो चाहिए वो फीड कर करके मैं अपने आप को खुश रखूंगा। इफ आई एम थिंकिंग दैट आई एम ego, I'm something, so to fulfill, to nourish that ego, whatever is required, that I'll keep feeding. But when we understand that I am a soul, I'm a servant of the Lord, और मेरी constitutional position ये है, then we understand what is required to feed me। नते भागवतम, वेरी नाइस श्लोका, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। हम जानते नहीं है हमारी स्वार्थ गति विष्णु है और दुराशया बहिरर्थ मानिना, यथान अंधेर अंधार अंधारितान अनुवर्तते उपनियमाना, अंधे अंधार उपनियमान, एक अंधा दूसरे को खींच के लेके जा रहा है। तो वो भगवान बता रहा है कि सॉरी, भागवतम में श्लोका बता रहा है कि ये भौतिक जगत के अंदर इस हमारा मोटिवेशन, हमारी डायरेक्शन, इफ वी मेक अ मटेरियल वर्ल्ड एज अवर स्टैंडर्ड, then all these blind people will tell us that okay, you go and maro। They will not give ultimate solution because we don't know our swartha, what is good for ourselves। हमारे निजी स्वार्थ को ही हम पहचानेंगे नहीं तो हम कैसे उनको वो चीज देंगे?
So first we should understand what is good for me, barabar. Secondly, when we understand that this is good for me, then I will put my efforts, I will channelize all my efforts to get that thing. Like Kunti Maharani is saying that Toi me anana manasa matir madhur pate sakrat rati udvati udvanti adha gangeva udvanti adho udvanti. Ganga Nadi, Mother Ganga Ganges flows with such a current. Anything comes on the way, it takes, she takes along with. यहाँ पे गोनू आया था, देखा ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बसेस वो पत्ते की तरह तैर रही हैं, क्योंकि फोर्स इतना था. तो कुंती महारानी वही बोल रही हैं कि मेरी मति रति वो मधुपते भगवान के चरण कमल में ऐसे जाए जैसे 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 मदर गंगा बह रही है, गंगा मैया बह रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना निज स्वार्थ समझ लिया है. क्या है? विष्णु गति. कृष्ण भाविता रसमति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते. ये भक्ति 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 करते हैं, तो यहाँ पे डेस्परेशन कब आएगा? दैट फ्लो करंट व्हेन इट विल कम. कृष्ण भाविता रसमति, कृष्ण भाविता रसमति कुतो भी क्रियताम कुतो भी लभ्यते. तो उनको खरीदने के लिए तत्र लोल्यम अपि एकलम मूल्यम एकलम, एक ही लोल्यम है, वही एक मूल्य है उनका. और जन्म सुकृति न लभ्यते. तो लालच होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए, इमरजेंसी होनी चाहिए. जब ये डिवोशन को, मेरे डिवोशनल सर्विस को मैं मेरा जीवन का ध्येय बनाऊं. और दैट इज माय पर्पस ऑफ माय वेरी पर्पस ऑफ हैविंग दिस बॉडी है. कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते. Being engaged in devotional service for so many years, still we don't come out from our bodily comfort, not comforts, but bodily focused thoughts, probably. पहले बताते थे ना कि ये धूप सली जलती है, तो एवरीबडी, सबने अपने बचपन में ये एग्जांपल सुना होगा कि ये अगरबत्ती है, जलती है तो सुवास देती है. And it gives a very good lesson कि ये बॉडी है, ये शरीर है, वो जलेगा, वो कहीं सेवा में काम आएगा, तभी वो खुशबू देगा, है ना. और हम क्या करते, नहीं ये तो प्रसाद बनाने में वो नहीं आए थे माता जी, तो हम भी नहीं जाएंगे. या ये मैं सेवा करता हूँ ना, तभी वो कभी आते नहीं, तो हम कैसे करें. अरे भाई, यहाँ पे ये बॉडी को हम टेम्पररी समझ रहे हैं, एंड इट शुड बी यूज्ड एनीवेयर. कृष्णा इज देयर आल्सो, कृष्णा इज देयर आल्सो, कृष्णा इज देयर आल्सो. इट इज नॉट दैट कृष्णा इज सिटिंग हियर एट माय होम. When we'll come out from this concept, I mean self-centric approach. So always we should meditate on this, that our Swagati is Vishnu, and our body should be used as much as possible, and that is the purpose. Otherwise, Bhakti Vinod Thakur, Dulabh Manav, क्या वो भजन के अंदर बोल रहे हैं कि this body will be consumed, it will be used for the celebration of Kukar and Sukar. All dogs and worms will eat, and they will enjoy Mohotsava. They will celebrate like Mohotsava, that this body has come. Let's enjoy, let's enjoy, let's enjoy. So body is for that purpose, or is it for devotional service? So enjoyer is one, and I am the only take responsibility to make him happy. It is not that Shamsas Prabhu ने भोग लगा दिया ना तो भगवान खुश है, अभी हो गया. It is my responsibility, because for my well-being, I should. अच्छा, यहाँ पे
अभी टाइम नहीं है, पर रघुनाथ दास गोस्वामी escaped. Sanatan Goswami also escaped by this diplomacy. They are all are Sat Goswamis. धीरा धीरा जनाओ प्रिया प्रिय करो निर्मत्सर ना, वो निर्मत्सरा थे, उनके कोई दुश्मन नहीं थे, नो एनिमीज। एंड इतनी इतनी इंटीग्रिटी, इतनी प्योरिटी थी, फिर भी ये डिप्लोमेसी को यूज करके वो चले गए। पर्पस वाज व्हाट? फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा थ्रू गौरंग महाप्रभु। सनातन श्रीवास आचार्य जब भी हो रहा था, उनके पुत्र का देहांत हुआ, तो गौरंग महाप्रभु को कुछ बताया नहीं, कुछ बताया नहीं। कितना संघर्ष होता रहेगा उनके हृदय के अंदर। विदुरा ने उनको धृतराष्ट्र को बोला, भी तू क्यों दूसरे के रोटी के ऊपर पला है? उनको खींच के वो के निकाल दिया। तभी किसके भले के लिए? धृतराष्ट्र, अपने धृतराष्ट्र के भले के लिए। नरोत्तम अद्वैताचार्य, वन टाइम ही थॉट, वो बी क्विक, वो उनके गुरु, महाप्रभु के गुरु, मतलब वो गुरु वर्य थे महाप्रभु के, अद्वैताचार्य। बट ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट रिलेशन, दैट ऑल द टाइम महाप्रभु रिस्पेक्ट मी, रिस्पेक्ट मी, रिस्पेक्ट मी। So what he did, he started preaching Mayavad. Purpose was that he come and beat me. So he started telling that by accumulating knowledge, you can perceive Supreme Lord in your heart. And this message went to Mahaprabhu. Mahaprabhu became angry, came and started beating. And Advaita Acharya, who only brought Mahaprabhu on this earth. So he started beating and he was feeling so ecstasy, then Mahaprabhu understood that to please him, this was done. But the purpose was what? Giving pleasure to Lord. So this way, acha. In any case, diplomacy is there, dvand is there, cheating propensity is there for good or bad cause, but it spoils our consciousness. Why spoils? Because we always, and I'm not talking about Advaita Acharya, I'm just talking at our level. When we start using this diplomacy, then our consciousness will be spoiled, because we are keeping somebody unknown. I mean, उनको कुछ नहीं बताते हुए उससे कुछ प्राप्त करते हैं। तो हमारे एक महाराज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, वी शुड ऑलवेज टेक द इन्वेंटरी ऑफ सिंसियरिटी, सीरियसनेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। सिंसियरिटी, सीरियसनेस और सेल्फ इंटरेस्ट की इन्वेंटरी हमेशा अपने हृदय के अंदर लेनी है, जैसे अपने लेते हैं ना एवरी मंथ एंड और क्वार्टर एंड। सो एवरी टाइम वी शुड सी दैट हाउ मच सिंसियरिटी है, हाउ मच सेल्फ इंटरेस्ट है। एंड वो कैसे कर पाएंगे? जब भी ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी रहेगी, सिंप्लिसिटी और प्योरिटी रहेगी, तभी ये कर सकते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी सिंसियर और be simple in our thoughts and our exchanges. Nobody should think that what would be the result of his action. ऐसा वो किसी के ध्यान में, ये मैं बहुत बार प्रभु से भी सीखा है कि nobody should have another thought on our action. If I do mistake, then सामने वाला बोले, हाँ प्रभु ने शायद वो मिस्टेक किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु ने ये क्यों किया? प्रभु तो ऐसे नहीं करते थे। हमारी एक्शन से वी शुड नॉट मेक समबडी टू रियलाइज ऑन बिग क्वेश्चन मार्क ऑन our activities. So that much simplicity should be there while doing having exchange with the devotees. तो और एक धर्म संकट जैसा शब्द हम बारंबार यूज करते हैं कि प्रभु ये स्थिति में हम क्या करें, ऐसा हुआ। तो महाप्रभु बताते हैं, वेरी नाइस श्लोका, क्या बताते हैं? मरकट वैराग्य न करे लोक देखाना। मरकट वैराग्य नहीं करना है लोगों के लिए। यथा योग्य विषय भूंजिया
अनासक्त होने। जो कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो प्रभु ये नहीं कर सकते, हम डिवोटी हैं, बट फॉर हायर कोर्स प्रीचर डज दैट। क्यों? बोले यथा योग्य विषय भूंजा अनासक्त हुए, अनासक्त होके वो विषय को भोग करते हैं। पर यहाँ पे बताते हैं अंतरे निष्ठा करे बाह्य लोक व्यवहार। अंदर बहुत ही अच्छा निष्ठा किया है, दृढ़ निश्चय है, और बाहर बाहर लोक व्यवहार अलग है। अंदर अंतर निष्ठा करी बाह्य लोक व्यवहार। निष्ठा कौन सी है? आई एम कृष्णा डिवोटी, आई एम कृष्णा सर्वेंट, एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी। एंड by having this fixed in our heart, we do all dealings with. Otherwise, from more last statement, अचिरेत कृष्ण तुम्हार करीबे उतारा। within no time कृष्णा, अचिरेत मतलब immediately, कृष्णा करीबे उद्धार, कृष्णा आपका उद्धार करे। महाप्रभु बता रहा है कि यथा योग्य विषय भूंजा अनासक्त हो गए कोई भी। तो प्रचार के लिए प्रचार करते हैं, तो we come in contact with many karmi worldly people, and we also have just 10 15 20 years से हम लोग ये अनासक्त और डिवोशनल सर्विस और उनके बारे में सुन रहे हैं, और भगवान गुरु की कृपा से थोड़ा बहुत समझ पाए हैं और डिवोशनल सर्विस में लगे हैं। और उससे पहले हमने क्या कांड किए हैं वो तो हमें सबको पता है ना। इतनी सारी योनियों में इतनी सारी जन्म लिए हैं। वी नो एवरीथिंग इज सबड्यूड। बट कभी क्या होता है, जब भी कोई ड्रंकर्ड है या स्मोकर है वो छोड़ देता है, पर जब भी वो कुछ आता है उसमें तुरंत ही उनको उजागर हो जाता है आउट के प्रति। ही वांट्स टू एंजॉय, ही वांट्स टू टेक ड्रिंक। सिमिलरली हमने कृष्णा कॉन्शियस में आके वो सबको दबाया है, एंड ट्राई टू क्लींसिंग अवर क्लीनिंग आई मीन अवर कॉन्शियसनेस by devotional service, by mercy of the Lord, Guru Gaurangas, by association of the devotee. But morning we leave, evening we come back, and full day we are meeting with karmi people. So likely we may change our conscious, spoil our consciousness. तो उसके लिए इंटेक्ट रहना है, क्योंकि आपको डिप्लोमेसी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू आर इन प्रीचिंग फील्ड। यू आर नॉट बाबा जी इन वृंदावन वेयर यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विथ एनीबडी, और यू हैव वीन ओवर योर सेंसेस को खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, जो भी होगा मधुकरी में खा लेंगे, और ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग वी आर इन प्रीचिंग फील्ड, एंड फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड गौरंगा। भगवान महाप्रभु ने बोला है नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। सब जगह पे प्रचार होना है, तो ये रिस्क कौन लेगा? भगवान का भक्त लेगा। एंड कृष्णा नोज दैट ही इज not empowered to fight against my maya, mama maya durattvaya. So Krishna's one hand is always there to hold his devotee, correct? Krishna is telling mama maya durattvaya, और ये माया में जाके क्यों भिड़ रहा है दूसरे भक्तों को बनाने के लिए, या उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए। तो कृष्णा टेक्स अस, बट एट द सेम टाइम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मॉर्निंग चैंटिंग, मॉर्निंग श्रीमद भागवतम, मॉर्निंग भगवान का जो भी हम साधना आराधना कर रहे हैं वो करके इंटेक्ट हो, और शाम को आके ये प्रभुपाद जी ने एकदम अच्छा लाइफस्टाइल दिया है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द माया, वो मटेरियल वर्ल्ड। तो यही है कि किस प्रकार हम लोग ये जो संघर्ष हो रहा है विच इज एक्नॉलेज रिकॉग्नाइज बाय कृष्णा। कृष्णा नोज दैट every preacher they are suffering. Why? Because they become instrument to deliver the mercy of the Lord. Krishna is the source of mercy and he delivers, but how much mercy we hold, अपना हृदय कितना है उतना ही मर्सी होल्ड कर पाएंगे ना। और हमारी कुंठित या हमारे कलमस या हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है, वो will not allow us to hold bigger quantum of mercy. So we can't give everybody that, oh, like our Guru Maharaj. Anybody comes in contact with Guru Maharaj, he'll be purified. Why? Because he has big vessel of receiving mercy and distributing mercy. अपनी कैपेसिटी है उतनी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो इतना जरूरी है, we should preach.
to distribute the mercy of the Supreme Lord, and which is the instruction of Guru, our whole parampara. कुएं में पानी रहेगा, पड़ा रहेगा ना, तो पानी गंदा हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। और कुएं में अच्छा पानी है, 50 हॉर्स पावर का मोटर डाल दिया और पानी निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, तो ड्राई हो जाएगा। यू कांट टेक वाटर्स मोर देन व्हाट इज देयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई अभी नहीं निकालता हूँ, अभी रात को थोड़ा पानी भरने दो, बाद में दूसरे दिन निकालू। तो सेम सिचुएशन, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट आवर लव, आवर केयर। और केयर है वहां पे पेन है। इफ यू आर केयरिंग समबडी, देयर मस्ट बी ए पेन इन योर हार्ट। If you don't have pain, then we are not caring others. It is not that सब लोग सुखी लोग हमारे सामने आए, उनकी केयर की जरूरत नहीं और फिर भी मैं केयर देने जा रहा हूँ, तो मुझे दुख होगा ही नहीं। पर जिनको केयर की जरूरत है, आई एम एक्सटेंडिंग माई सेल्फ, so I have pain, I feel pain, and that is indication that I'm caring somebody. So ये जो ड्राई हो रहा है ना वेल, ये ड्राई हो रहा है हमारा। ये ड्राई होना मतलब कि कलमस आना चालू कर दिया, प्रीचिंग करते करते ईगो आया, ये आया, वो आया। मतलब वी स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑन आवर वॉट एवर वी आर डूइंग, मतलब कुआं खाली हो गया है। तो उनको साधना से फिर से भरना है, देन ओनली वी कैन डिलीवर। सो टू एक्टिविटी शुड गो टुगेदर। एक तो कुएं को भरना है और कुएं को निकालना है, मर्सी को लेना है और मर्सी को देना है। मर्सी लेंगे नहीं, देंगे नहीं, तो we will be miser. Especially our sampradaya will not appreciate that. और गुरु महाराज will, प्रभुपाद जी के जो भी शिष्यगण हैं, कोई, क्योंकि वो अपने आप को खपा दिया ये प्रचार कार्य के अंदर। So we should keep filling our heart with the mercy of the Lord, acknowledge the mercy, and always in begging more to aspire more and more mercy of devotees. And at the same time, we should distribute it to the people who are not known to Krishna, they are not aware about the sweetness of Krishna consciousness, and that is our responsibility. And as much as we know, Krishna empowers us that much, and Krishna gives us strength that much. Shri Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai. Hari Bol. Hare Krishna, Sankarshan Prabhu, thank you so much for so wonderfully explaining the work today. You nicely put the whole verse in the perspective of how we should practice or apply this in our own lives, which is what is the real purpose of the Lord giving us Srimad Bhagavatam. Thank you very much, Prabhuji. And there are many points that you made in line with the verse of purport. तो आपने ये स्नेक और का लॉजिक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और आपने बताया, आई जस्ट म्यूट यू और somebody with sound coming from, तो आपने एक्सप्लेन किया कि डिप्लोमेसी ऐसा ही गलत नहीं है, बट उसका सही उपयोग ये होता है जिस भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो to please Krishna, if there is some diplomacy, it serves the right. आपने हाईलाइट किया कि everybody should be interested in their self-interest, which is Krishna consciousness. तो ये लाइंस में आपने बताया कि हम और देवतागण और सृष्टि के बीच में बहुत ही अच्छी तरह से एक अरेंजमेंट ऑफ कोऑपरेशन रचाया गया है, और ये पूरी अरेंजमेंट का पर्पस ये है कि हम हमारा कृष्ण भावनामृत को जगा सकें, और हमारा जो भी संबंध है ये प्रकृति के साथ या दूसरे जीवों के साथ, उसका आधार है हमारा असली संबंध भगवान कृष्ण के। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, और सिर्फ भगवान ही हमारा शेल्टर है। और इस
पार कर सकते हैं। तो अपने ये बताने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे कि कौरवास और पांडवास। तो कौरवास भी डिप्लोमेसी या डिप्लिसिटी अडॉप्ट किए, मगर उनका मोटिव एंड मीन्स ये था कि अ, मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ भी रूल्स ब्रेक कर सकता हूँ। मगर पांडव मोटिव और मीन्स था कि उनके प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सही तरीका का डिप्लोमेसी है। और इस तरह का डिप्लोमेसी हम करेंगे तो भगवान हमारे लिए खुद भगवान प्लान करते हैं। जिस तरह आपने उदाहरण दिया कि दुर्योधन जब उनके माँ के पास जा रहे थे, कृष्ण ने इंटरवीन किया और सिचुएशन को बदल दिया। तो आपने बताया कि डिप्लोमेसी का और एक उदाहरण है भगवान कृष्ण ही। जब वो जब वो हम सबको प्रेम करते हैं, बट यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम क्षणाय, मगर हमें हमसे कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। क्यों? ताकि हम उनके ऊपर पूरी तरह से निर्धारित हो। और आपने ये भी बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवान का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान हमें फाइनली दे रहे हैं। तो हर एक चैप्टर में भगवान यही बताया है, हमें वो सीखना है। We have to identify that Krishna is actually giving us the same instruction right from the beginning. और हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, स्वार्थ गति क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि जो मेरा मन को प्लीजिंग है वो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, या मेरा अहंकार या फॉल्स ईगो के लिए प्लीजिंग है, वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। जो सेल्फ इंटरेस्ट वो होता है जो हमारा अस्तित्व, जो हम अ, भगवान के सनातन सेवक है, इससे जो होता है वो है हमारा इंटरेस्ट। Originates out of our original identity as a spirit, soul, and eternal servant of Krishna. That is self-interest. मते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भागवत में हमें ये सिखाया है। और ये क्लैरिफाई कर देंगे तो हमारा जो भी श्रम है, जीवन का जो डायरेक्शन है, वो उस तरह हम मोड़ सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, एक सिर्फ एक आ, आ, दाम देना है, वो है लौल्यम। वी हैव टू बिकम वेरी ग्रीडी टुवर्ड्स वर्किंग फॉर आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और इसके लिए हमें हमारा बॉडीली देहात्म बुद्धि से बाहर आना है। जब हम सेवा करते हैं तो ये मन में किए। और आपने और भी शुद्ध भक्तों का उदाहरण दिए, जिस तरह वो डिप्लोमेसी या नीति को अडॉप्ट किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। रूप स्वामी, विदुरा, अद्वैताचार्य, ये सब, मगर वो राइट कॉज के लिए डिप्लोमेटिक बने। तो ये हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में जी रहे, आई मीन ये भौतिक संसार में हम जी रहे हैं। तो अ, अगर हम इंटरनली हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा ये इसमें फिक्स्ड रहेंगे, तो हमारा एक्सटर्नल डीलिंग्स, एक्शंस, ये सब परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह आ, हम अगर भौतिक संसार से जीने के लिए डिप्लोमेसी अडॉप्ट करना है, फिर भी हम हमारा सेल्फ इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और आपने बताया कि आ, हमें रोज ये एग्जामिन करना है या स्टॉक लेना है कि हम कितने सिंसियर है, कितना कितने सीरियस है, और कितने
कितना हम हमारा स्वार्थ गति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये हमें स्टॉक लेना है। और इसके लिए हमें सरलता बहुत इम्पोर्टेंट है, और ह्यूमिलिटी, प्योरिटी, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अंत में आपने ये कुएं का उदाहरण देके बताया कि हमें कृष्णा लेना है हमारे जीवन में, और दूसरे लोग को कृष्णा हमें देना है। इस तरह हमारा भक्ति भी बढ़ेगा, और आ, हम हमारा स्वार्थ गति के लिए काम करते रहेंगे। So thank you very much, Prabhu, for such a nice explanation of today's verse. Hare Krishna. So you can glorify Bhagavad. Yeah, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की, ग्रंथ वैष्णवृंद की जय। So announcements